your experience your last day's experience? Could anybody here let me help have a indirect or probably a second hand view of what exactly transpired yesterday, since I wasn't particularly here? I just heard of it through multiple hearsay means and through various indirect and personal confidential sources, but probably I hope you must have all enjoyed to the max possible extent your yesterday's class. Was it so? Okay, worry not, this is going to be probably, if not on a higher spirit, yet probably you'll get the max out of it, to quote in the least possible terms that I could, through the platform of Legal Edge, that I personally feel is indeed one of the core front runner North Indian brands that simply leads by example. It has an idea, an ideology, a vision, and an overall creative dimension of its own to create minds independent enough to learn, nurture, and architect a future of their own person customized values. Getting it? Okay. So probably this is the second day for you and the decisive day for me, so that I could let your brains be simply stuffed with the essential content that may serve as one of the springboards to your success in the nearing CLAT 2019. Am I correct? Yes. Am I hitting the turf correctly? Okay. चलिए बच्चों, तो मैं अब स्टार्ट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एरिया से. आई होप सौरभ सर मस्ट हैव by now briefed you with the agenda of this class, that half shall be dedicated to static and half current affairs, and you all are pretty much thoroughly conversant with what exactly current affairs section is and how volatile is it. Everybody here must have been previously exposed to certain technical retail terms like FMCG, fast moving consumer goods. Likewise, current affairs are also fast moving information goods. They don't take much time in getting digested, ingested, and even excreted. So slowly and gradually you just have to get in touch with them, but don't have to get too emotional and too associated with them. Probably you must have heard a term in Urdu poet, in Amir Khusru's shairi, that Urdu tongue, there used to be an axiom, दिल लगाइए दिल लगी मत करिए. तो कृपया करके करंट अफेयर्स के साथ दिल लगी मत करिएगा, बहुत बेवफा है. 3 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी नहीं है. सुनिए, जानिए, पेपर में यूज करिए और भूल जाइए. ठीक है, भूल जाइए. एंड स्टैटिक लाइफ लॉन्ग याद रखिए. स्टैटिक वो नॉलेज है जो लाइफ में आपके एक ब्राइटर, ब्रिलियंट, ल्यूमिनस एंड scintillating futuristic perspective का turf बनने वाली है. That shall form the bedrock of the type of prospect you shall have from here and the type of contribution you shall render to it, probably today in minor proportions and tomorrow in one of the most major proportions. Getting my point, Charlie? Now I'll start with some of those topics which literally hit and pinch India the max. But I hope everybody over here must be thoroughly informed about what the dismissive and psychoactively stimulating term FDI is. FDI के बारे में तो हर कोई समझता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आप सुनिएगा मेरी बात को बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है 3 बार एलिट एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुका है और 3 बड़े एलिट एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को टेस्ट कर चुका है. नंबर 1 एलिट, नंबर 2 क्लैट, एंड एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक इंटरनल एग्जाम होता है, दैट्स DU ZAT. तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन डिफरेंट ईयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री, लिख लीजिए, विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स maximum foreign value of exchange, which country contributes maximum foreign value of exchange into Indian economy, which country contributes maximum value of foreign exchange into Indian economy through FDI. FDI के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोई बताएगा? 2-3 लोगों से मुझे आंसर्स मिले हैं. मॉरिशस. ठीक है, मॉरिशस. वेरी गुड. अब ये तो बेटा स्टैटिक का क्वेश्चन था. एक चीज मैं आपको और कायदे से बता दूं, ये जो स्टैटिक है
ये पूरे करंट अफेयर्स की जननी है। स्टैटिक सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंटायर टिंसल टाउन ऑफ करंट अफेयर्स। स्टैटिक नहीं होगा करंट अफेयर्स, कभी नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। करंट अफेयर्स किस चीज के? जो एग्जिस्ट करती है उसी चीज के तो करंट अफेयर्स होंगे। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कहां से करंट अफेयर्स होंगे? न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के कोई करंट अफेयर्स नहीं होने वाले, एंड्रोमेडा के कोई करंट अफेयर्स नहीं होने वाले, ठीक है ना। केजे 2228 के, बीबी के कोई करंट अफेयर्स नहीं होने वाले, बिकॉज दे आर सिंपली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स। वहां पे दुनिया है भी या नहीं है, कोई नॉलेज फैक्टर हमारे पास है भी या नहीं, कहां से करंट होंगे? करंट वही होगा दैट इज अ लाइफ that is existing and that was once established. I hope सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। FDI के लिए सबसे अच्छा, इंडिया के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं इंडियाज बिगेस्ट अलाय इन टर्म्स ऑफ FDI कंट्रीब्यूशन, नंबर 1 मॉरिशस एंड नंबर 2 सिंगापुर। अब मैं परसेंटेज वाइज आपको बता रहा हूं कौन सी इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर। मॉरिशस का FDI कंट्रीब्यूशन रिमेन समवेयर अराउंड 42% एंड सिंगापुर का रहता है अराउंड 10%। एंड कोई मुझे कारण बताएगा बेटा, इन दो देशों को हिंदुस्तान से ऐसी क्या मोहब्बत है, ऐसा क्या दिल आ जाता है इनका हिंदुस्तान पे? व्हाट द वेरी स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनिंग रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच सच ह्यूज इनफ्लोज ऑफ FDI आर अट्रैक्टेड थ्रू द मेनलैंड्स ऑफ दीज टू मिनिएचर कंट्रीज। मिनिएचर का मतलब समझना, साइज बहुत छोटा है इनका, बट इतना बड़ा FDI देते हैं हिंदुस्तान को। क्यों देते हैं बेटा? कोई मुझे एक टर्म है बेटा, एक वो टर्म है जिसके बारे में मैं भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके बारे में मैं एक्सपेक्ट करता हूं दैट मच ऑफ द पॉपुलेशन अवेलेबल ओवर हियर, मच ऑफ द फोकस्ड एंड रेलेवेंट पॉपुलेशन अवेलेबल ओवर देयर शुड हैव हर्ड अबाउट इट। बताइए क्या वो कारण है कि ये दो देश से इतना ज्यादा पैसा हिंदुस्तान आता है? People of Indian origin के लिए Indian diaspora. What's your name, dear? Shreya. Okay. Indian diaspora. The girl has given the answer. Indian diaspora. बेटा Indian diaspora में कृपया करके कई कैटेगरीज आती हैं, उन कैटेगरीज को बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। Indian diaspora का मतलब होता है people of Indian descent. इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। People ऑफ इंडियन ओरिजिन मत बोलिएगा, ओरिजिन से अच्छा टर्म है आपके सामने डिसेंट, DESSCENT, पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट। और अभी लेटेस्ट इसी साल के करंट अफेयर्स में एक हमारे पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल नहीं मैं उनको कहूंगा जेम ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनकी डेथ हुई है लेकिन वो इंडिया में नहीं पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। नाम सुना है इस देश का? VS नाइपॉल। VS नाइपॉल का पूरा नाम कोई मुझे बताएगा? विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपॉल, ठीक है। एंड VS नाइपॉल के बारे में मैं एक चीज और बता दूं, ये इंडियन ओरिजिन के लोन ऑथर हैं जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है। लिख लीजिए पूरा कनेक्शन, छोटा सा कनेक्टिकट मैंने आपके लिए बना दिया है। हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, VS नाइपॉल, इंडियन डायस्पोरा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल क्या बेटा? लिख लो पोर्ट ऑफ स्पेन। ऐसे क्वेश्चंस सीधे सीधे डाल दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स जनरली kind of generally go responseless with respect to how to behave with such questions that are beyond their standards of expectation. Getting it right on? वेस्ट इंडीज का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? कोई देश है? देश नहीं है बेटा, इट्स एन आर्कीपेलागो। व्हाट इज इट? आर्कीपेलागो। ये टर्म सुना है कभी? आर्कीपेलागो, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आर्कीपेलागो। बच्चों एक बात बताइएगा, कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, वेरी गुड। इंडोनेशिया की कोई खासियत बताएंगी बेटा आप? सबसे ज्यादा वोल्केनोस। वेरी गुड, एक तो आपने बता दिया, दूसरी भी बता दीजिए जरा मुझे। सबसे ज्यादा मुस्लिम और सबसे सेक्युलर मुस्लिम। वहां की जो मुस्लिम मेंटालिटी है, मुस्लिम आउटलुक है, मुस्लिम कंसेप्शन है, that's so unique, that's so epic that they simply deserve a place at the first quarter of Guinness Book of World Records. Despite being a wholly Islam dominant country, that country has maintained a record of preservation of ancient Hindu culture in its most primitive and pristine form. नाम सुना है बेटा? आपको मैं दो शहरों का नाम बताता हूं वहां पे, कभी टाइम मिले, कभी थोड़े से जरा से भी टूरिस्ट इंक्लिनेशंस अगर आपके अंदर जर्मिनेट हो, वो बीन्स जर्मिनेट हो, तो एक बार इंडोनेशिया जाके जरूर देखिएगा। किसी को यहां पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको अपने
एपिक एज और अपनी एपिक हिस्ट्री से थोड़ा सा भी एक कनेक्शन फील होता है, एक थोड़ा सा एसोसिएशन फील होता है, थोड़ी सी तमन्ना है दैट वी शुड delve into it like the ages of Ramayana, Mahabharat. We should try to know what our ancestors was and what was the overall socio-economic milieu of those times. Is there anybody who could probably दे सकता है? बिल्कुल. तो बेटा दो शहरों में जरूर जाइएगा इंडोनेशिया के, जावा एंड बाली. ये दो छोटे छोटे शहर हैं और इनके बारे में आपको एक चीज बता दूं, सुबह से रात तक 24 घंटे आपने नाम सुना होगा, एक हमारे हिंदू फैमिलीज में, हिंदू हाउस होल्ड में अखंड रामायण का पाठ होता है. मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होता है एंड राम और हनुमान की पूजा होती है. एंड ये पूजा हिंदूज नहीं करते, मुस्लिम्स करते हैं. दुनिया को सीखना चाहिए इन लोगों से. वी शुड रादर लर्न सर्टेन वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम दिस स्मॉल आर्कीपेलेजिक स्टेट. आई बात समझ में बेटा? सो दिस इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के बारे में आप बहुत सी चीजें और भी जानते होंगे. कोई मुझे यह बताएगा इंडोनेशिया किस पर्टिकुलर रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप का हेडक्वार्टर्स है? आसियान. कहां पे है? मनीला. लिख लीजिए. आसियान के हेडक्वार्टर्स भी हमारे इंडोनेशिया में, मनीला नहीं सॉरी जकार्ता. आसियान के हेडक्वार्टर्स भी हमारे जकार्ता में है. एंड आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? 1967. राइट डाउन. 1967. देखिए आसियान में तो आप लोग जानते होंगे कितने स्टेट्स हैं, ये क्वेश्चन है. कितने कंट्रीज है? 10 कंट्रीज है आसियान में. और आसियान को एक्सपैंड करके एक नई ग्रुपिंग बनी अभी कुछ दिन पहले. कोई बताएगा मुझे? नहीं, EAS, ईस्ट एशिया समिट. राइट डाउन. आसियान का एक्सपैंडेड फॉर्म है बेटा वो. आसियान प्लस फ्यू इंपैक्टफुल इंटरनेशनल पावर्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, यूएस भी आ जाता है, जापान भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ऐसे देश आ जाते हैं और ये मिलके बनता है EAS, ईस्ट एशिया समिट. इसी ईयर हम इस समिट के, हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, कोलिजन के क्या बने हैं? मेंबर बने हैं. सीओ का नाम सुना है आप लोगों ने? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. चाइना के शहरों में शांघाई मेरा फेवरेट शहर है.